Hello students, welcome to Paul's Cambridge Alliance Paripura Srinagar. As you all know that myself Insha Mushtaq from class 12 Humanities. So this is my first lecture regarding international organization. So before starting my today's lecture, international organization, I will go through these basic outlines that what I'm going to teach you today. So the first topic is what is international organization, then why international organization, evolution of UN, aims of UN, reforms of UN, and principal organs of UN, and India and UN. So first topic is that what is international organization? International organization is an organization established by a treaty or other instrument governed by international law. The legal personality such as World Health Organization, WHO, NATO, North Atlantic Treaty Organization, and United Nations. So please have a look at the logo of United Nations. The emblem shows world map and with all your brands and which signifies world peace. So the second question arises here is that why we need international organization. We need international organization due to the following. Reasons. जैसा कि आप सब जानते हैं 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो इसमें यूके, यूएसए, जर्मनी आपस में लड़ रहे थे। तो एक ही चीज़ देखने को मिली, डिस्ट्रक्शन, ओनली वन थिंग, दैट्स डिस्ट्रक्शन। तो उसके बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। 1922 में ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी बिकॉज बेसिक एम इसका था टू प्रिवेंट वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट जो फर्दर होने वाले हैं। बट इसका जो मेन ड्रॉबैक था दैट वाज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 1945 तक चला। इसमें बहुत सारे इनोसेंट सोल्जर्स उन्होंने अपनी जान खो दी एंड इसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस we can say that we need international organization. International organization is helping to set the international agenda and mediating political bargaining and practicing a place for political initiatives. They also acting as a catalyst for coalition formation. They facilitate cooperation and coordination among member states. And then international organization is a platform for all member states to prevent wars and conflicts. International organization is a platform for all member states to prevent war-like situation through dialogues. As Shashi Tharoor has quoted a quotation, it is better to bore with each other into wars rather than bore holes into each other on the battlefield. उसका भी यही कहना था, हमें वॉर को होने नहीं देना चाहिए, बट हमें सिचुएशन को डायलॉग से निपटाना चाहिए. It's the best solution to prevent war and conflicts. And so coming to next topic, that's evolution of UN. World War II has ended in 1945, so it was the establishment of United Nations 1945 24 October. So we will understand through these treaties how United Nations has established. So the first treaty was अटलांटिक चार्टर 1941 अगस्त में ये ट्रीटी साइन की गई थी बाय यूएस President Franklin D. Roosevelt FDR, British Prime Minister Winston Churchill, उन्होंने ये चार्टर साइन करा. देन आफ्टर 1942 में जैन 1942 में एक डिक्लेरेशन साइन करा था यूएस ने. 26 अलाइड नेशन और एक्सिस पावर्स थे, उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन करा. देन आफ्टर द थर्ड वॉज 1943 दिसंबर में तेहरान कॉन्फ्रेंस हुई बिटवीन बिग थ्री सुपर पावर्स यूएसए, यूके एंड सोवियत यूनियन. उसमें थे FDR, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल एंड स्टालिन. 1945 जून 26 में एक यूएन चार्टर को साइन करा था 15 नेशंस ने. तो लेटर पोलैंड ने साइन करा एंड इट बिकेम इट्स ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर. क्योंकि पोलैंड की कुछ पॉलिटिकल इश्यूज थे इसीलिए इसने लेटर साइन करा. देन आफ्टर 1945 अक्टूबर 24 यूएन हैज़
was founded, and every year UN Day is celebrated 24 अक्टूबर 1945। 26 जून एक UN चार्टर साइन करा गया था 50 नेशन से। लेटर पोलैंड ने साइन करा क्योंकि उसके कुछ पॉलिटिकल इश्यूज थे। देन आफ्टर 1945 24 अक्टूबर UN एस्टैब्लिश हुआ था, इम्प्लीमेंट किया गया था। And every year 24 अक्टूबर is celebrated as UN Day। Then after इंडिया ने कब ज्वाइन करा UN को? It was 30 अक्टूबर 1945 जब इंडिया ने ज्वाइन करा UN को। Now coming to next topic, there's aims of UN. So the first aim of UN is that to maintain international peace and security among states, because this is a very founding stone of United Nations. Second aim of UN is that to encourage international cooperation in terms of social, economic, political and development issues. Just like superpowers होते हैं, उनको help करनी चाहिए जो growing economies हो, उन some sort of help loans provide करने चाहिए। So coming to third aim of UN, that's to promote friendly ties among nations so that the principles of equal rights and self-determination stay। एग्जाम्पल अफ्रीकन बच्चे होते और अमेरिकन बच्चे होते, वाइट एंड ब्लैक। हम नहीं बोलेंगे कि वाइट सुपीरियर है एंड ब्लैक जो है इन्फीरियर है। इन द आइज ऑफ यूएन बोथ आर इक्वल। सो द नेक्स्ट एम ऑफ यूएन इज दैट टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड इन केस ऑफ क्राइसिस, नेशनल डिजास्टर्स, जैसा कि यूनिसेफ एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। The last aim of UN is that to recognize the fundamental rights of all the people, that's right to life, right to liberty, etc. So the next topic is the reforms of in UN। जब सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी, यूनाइटेड नेशन के साथ ही सिक्योरिटी काउंसिल बनी, तो उसमें जब सिक्योरिटी 1992 में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा था, उसमें कुछ कंप्लेंट्स आई थी रिगार्डिंग सिक्योरिटी काउंसिल। पहली जो कंप्लेंट थी वो पॉलिटिकल रियलिटीज़ को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। सेकेंड कंप्लेंट वाज दैट कि वो वेस्टर्न वैल्यूज़ को ज़्यादा प्रिडोमिनेंट कर रहे हैं, वो उन्हीं के डिसीजंस को रिफ्लेक्ट कर रहे। थर्ड वाज दैट इक्वल रिप्रेजेंटेशन हर किसी कंट्री को नहीं मिल रही है। एंड उसकी बुनियाद पे जब सिक्योरिटी काउंसिल की कंप्लेंट्स आनी शुरू होगी तो उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया दैट कि जो भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनना चाहिए, मेजर इकोनॉमिक सुपर पावर एंड मिलिट्री सुपर पावर, एंड ये यूएन बजट को बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। तो जैसे जैसे रिफॉर्म्स आए तो उससे क्या होगी, चेंज ऑकर हुई यूनाइटेड नेशंस में। सो द सेकेंड लास्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ओके, so United Nations have actually 6 principal organs. First organ is General Assembly, United Nations General Assembly। इसके 193 members होते हैं। एक्चुअली ratified member states 193 है, और अगर हम देखेंगे 200 above countries है, but these are ratified member states of General Assembly। and recently साउथ सूडान जिसकी कैपिटल जूबा है वो इसका मेंबर बना था जनरल असेंबली का। एंड इसके अभी प्रेजेंट में हेड तिजानी मोहम्मद बंदे है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका जो मेन एम है दैट टू सॉल्व डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर स्टेट्स। सो द सेकंड प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज सिक्योरिटी काउंसिल। इसके 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके पास वीटो होता है, जस्ट लाइक यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। एंड जो रिमेनिंग 10 मेंबर्स होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इसके अभी प्रेजेंट में हेड है ज़ैंग जुन ऑफ चाइना, एंड इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका जो मेन एम है दैट इज टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अमंग मेंबर स्टेट्स, बिकॉज दिस इज अ वेरी फाउंडिंग स्टोन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सो द थर्ड प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन इज इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 54 सीट्स होती है बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एंड इसके अभी प्रेजेंट में इसकी जो हेड है शी इज़ मोना जूल, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। So the main function of ECOSOC is that to coordinate policy reviews, policy dialogues and recommendations and economy, social and development issues. So and जो internationally agreed development goals होते हैं ये चाहता है कि हम उनको भी implement करें। Fourth organ of UN is Trusteeship Council। Trusteeship Council जो था वो सस्पेंड किया गया था 1 नवंबर 1994 जब जो लास्ट इंडिपेंडेंट स्टेट थी इट वाज पुलाव। तो 1994 तक जितनी भी कंट्रीज़ थी ट्रस्टीशिप काउंसिल हेल्प कर रहे थे उन सब कंट्रीज़ की उनकी इंडिपेंडेंस दिलाने में। तो इट वाज द लास्ट कंट्री पुलाव। देन आफ्टर इसको सस्पेंड किया गया क्योंकि उसके बाद ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ उनको इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी।
इसके ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स होते 11 और इसकी जो अभी प्रेजेंट हेड है शी इज़ एनी गुगन एंड इसका भी हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एंड अगर यूएन प्रेसिडेंट जो है होता है वो कभी भी मीटिंग बुलाता है तो उसमें ट्रस्टीशिप काउंसिल को बुलाया जाता है। ये सस्पेंडेड है बट जब यूएन के प्रेसिडेंट मीटिंग बुलाते हैं तो ये ज्वाइन कर सकते हैं, मगर जब प्रेसिडेंट ऑफ यूएन इससे बुलाए तब ये जा सकता है। So coming to next organ of UN is that International Court of Justice। इसके presently 16 judges हैं जिनका टेन्योर 9 years होता है एंड इसके जो अभी हेड है इज़ अब्दुल कावी यूसुफ एंड इसका भी जो हेड क्वार्टर इज़ ह्यूग्स नीदरलैंड्स में इसका हेड क्वार्टर है। एंड इसका जो मेन फंक्शन है दैट टू डिस्प्यूट को सॉल्व करना, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं, केसेस होते हैं, उनको सॉल्व करना इसका मेन एम होता है। सो द लास्ट ऑर्गन ऑफ यूएन इज़ दैट सेक्रेटेरिएट ऑर्गन एंड इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं तो इंक्लूडिंग इसका जो प्रेजेंट हेड है इट इज़ एंटोनियो गुटेरेस, ये पोर्टुगल के हैं एंड 1 Jan 2017 में इसका सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था। तो द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज़ द इंडिया एंड यूएन, इनकी रिलेशंस कैसी हैं। We all know that India is almost member of every single organization of United Nations and India जो है ये second populous country है, 7th and economically ये 7th रैंक पे आती है एंड दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। यूएन में जब भी पीस कीपिंग मिशन चलते हैं तो जब यूएन को हेल्प चाहिए होती इंडिया की तो इंडिया अपने सोल्जर्स, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स भेजता है एंड इंडिया चाहता है कि मैं एक परमानेंट मेंबर बनूं यूनाइटेड नेशंस का। वो डिमांड कर रहा है मेंबरशिप को एक्सटेंड किया जाए बट चाइना क्लेम कर रहा है कि अगर इंडिया को आप यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनाएंगे, परमानेंट मेंबर, तो आप पाकिस्तान को भी बनाए। सो इट्स एन इशू। जैसे कि आप सब जानते हैं जब कोल्ड वॉर हुआ था फ्रॉम 1945 से लेकर 1991 तक तो 2 सुपर पावर्स थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए प्रमोट कर रहा था कैपिटलिज्म को, यूएसएसआर प्रमोट कर रहा था कम्युनलिज्म को। एंड एट लास्ट जो सोवियत यूनियन है जब वो डिसइंटीग्रेट हुआ तो बाइपोलैरिटी भी डिसइंटीग्रेट हुई तो पोलर वर्ल्ड देखने को मिला एंड इसमें डोमिनेंट यूएसए है। अभी भी प्रेजेंटली भी यूएसए डोमिनेंट है एंड इंडिया चाहता भी है कि मैं इसका मेंबर बनूं यूएन का, क्योंकि वो अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय टुडेज टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।